اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال جان کے نقصان سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، یہاں وہی شخص سرخرو ہوتا ہے جو ہر حالت میں صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یعنی جو ایمان والا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، اصل راحت تو اس مقام پر ہے جہاں نہ آنکھ روئے گی، نہ دل دکھے گا، نہ کوئی حسرت باقی رہے گی۔ اے انسان، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری پریشانیاں بس تیرے ساتھ ہیں، تو جان لے کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی دکھ میں گرفتار ہے۔ کوئی اپنی خوشیوں کو چھپا کر جیتا ہے، کوئی مسکرا کر صدمے سہتا ہے، اور کوئی خاموش رہ کر آنکھوں سے سارا طوفان بہا دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ رب کی دہلیز پر گر کر راحت پا لیتے ہیں، اور کچھ دنیا سے شکوے کر کے مزید خالی ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر دل سے سکون چھن جائے تو دنیا کی ساری آسائشیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں، اور جب دل کو اپنے مالک سے لگاؤ ہو جائے تو ایک معمولی سی چیز میں بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے وہ اندھیری رات میں بھی روشنی ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس کا دل رب سے خالی ہو وہ دن کی روشنی میں بھی اندھیروں میں رہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، اپنے دل کی طرف دیکھو، کیا وہ زندہ ہے یا بس دھڑک رہا ہے؟ اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ یہ دل چین پائے تو سجدے سے دوستی کر، دعا سے رشتہ جوڑ، اور شکر کو اپنی زبان کا زیور بنا۔ یاد رکھ، جب زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق ہونے لگے تو پھر تکلیفیں بھی نعمت بن جاتی ہیں، محرومیاں بھی سبق بن جاتی ہیں، اور دعائیں دیر سے سہی مگر رد نہیں ہوتی۔ ایک شخص غربت سے تنگ آ کر، حالات کی سختی سے ہار مان کر خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا لیا تھا، رسی گردن میں پڑی تھی، مگر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ مرنے سے پہلے کسی بزرگ سے مشورہ کر لوں کہ خودکشی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے گلے سے رسی نکالی اور سیدھا حضرت مولانا رومی کے پاس جا پہنچا۔ کہنے لگا، حضرت، میں ابھی خودکشی کرنے والا تھا، مگر دل میں سوال آیا کہ یہ جو قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ حضرت مولانا رومی نے نہایت شفقت سے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ تھاما اور فرمایا، اے خدا کے بندے، آخر کس چیز نے تجھے اس قدر بے چین کر دیا کہ تو اپنے وجود کو مٹانے چلا تھا؟ وہ شخص سسک سسک کر بولا، حضرت، غربت نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میری بیوی صبر کی آخری حد پر ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ ہنر، نہ سہارا، نہ کوئی امید، میں جیتے جی مر چکا ہوں۔ حضرت مولانا رومی نے اس کی بات سنی اور گہری خاموشی کے بعد فرمایا، تو صرف اپنی آنکھ سے اپنے حال کو دیکھ رہا ہے، کبھی اللہ کی حکمت کی آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش کر، شاید تیرا یہی صبر تجھے اس مقام تک لے جائے جہاں فرشتے تیرے صبر پر رشک کریں۔ رب تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا، اللہ نے ہر نفس کے لیے ایک نفع رکھا ہے، اور ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ کی گھڑی بھی بہت قیمتی ہے۔ تو آج اپنی ہمت کے آخری کنارے پر کھڑا ہے، مگر تجھے معلوم نہیں کہ کل کا سورج تیرے لیے کون سی خوشخبری لے کر نکلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص ایک لمحہ صبر کر لے، اللہ اس لمحے میں اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر تو خودکشی کر لیتا، اگر تو اپنی جان لے لیتا، تو تیرے لیے تقدیر کا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا جو رب نے شاید کل تیرے لیے کھولنا تھا۔ اے بندے، موت کی تمنا مت کر، بلکہ اس رب سے جڑ جا جو مردہ زمین کو بھی بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ کیا وہ تیرے دل کی ویرانی کو خوشحالی میں نہیں بدل سکتا؟ واپس جا، محنت کر، دعا کر، اور توکل رکھ کہ تیرا خالی گھر کل رب کی رحمت سے بھر سکتا ہے۔ خود کو ختم نہ کر، بلکہ اس دنیا میں رب کے رنگ دیکھنے کا حوصلہ پیدا کر، کیونکہ جو رب سے مایوس ہوتا ہے وہ خود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ وہ شخص بار بار حضرت مولانا رومی کے سامنے روتے ہوئے یہی کہتا رہا کہ حضرت، میں روزی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی نڈھال ہو چکی ہے، میرے در و دیوار گواہ ہیں
कि मेरे घर में फाके कैसे दस्तक देते हैं। हजरत रूनी खामोशी से उसकी चीखों को सुन रहे थे, जैसे वो इंसान की आवाज नहीं बल्कि एक शिकस्ता रूह की पुकार सुन रहे हों। फिर नरमी से फरमाया, ऐ बंदे, तू जानता है कि रोजी का तेरे साथ कितना गहरा रिलेशन है। रोजी वो नेमत है जो अल्लाह ने हर जी रूह के नसीब में लिख दी है। तेरे पैदा होने से पहले तेरे रिज़्क़ का हिसाब लिख दिया गया था, मगर तू उसे ढूंढने के रास्ते से गाफिल हो गया। रोजी फकत रोटी का नाम नहीं, ये तो एक अमानत है, एक वसीला है जो इंसान को इज्जत, सुकून और इत्मीनान के साथ जोड़ता है। ये वो जरिया है जिससे बाप के हाथ में खैरात का कासा नहीं बल्कि गैरत की मेहनत होती है। अगर तू आज रोजी के गम में बिखर रहा है तो सुन ले, रोजी तेरी तलाश में है, मगर अल्लाह तुझे आजमाता है कि तू मायूस होता है या दर खटखटाता है। यह कहकर हजरत मौलाना रूमी ने जमीन से एक कुल्हाड़ी उठाई, उस शख्स को थमाई, साथ में एक रस्सी दी और फरमाया, जाओ जंगल जाओ, लकड़ियां काटो। वो शख्स दिल में अजीब सुकून के साथ जंगल चला गया। पूरा दिन लकड़ियां काटता रहा और शाम को हजरत मौलाना रूमी के पास वापस आया। लकड़ियां उनके कदमों में रखी। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, अब इन्हें बाजार में जाकर बेचो और इनमें से आधे पैसे अपने पास रखो और बाकी पैसों का खाना खरीदो और अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाओ। उस दिन से जैसे उस शख्स की जिंदगी का धारा ही बदल गया। रोज रोज वो लकड़ियां काटता, बेचता, बच्चों को खिलाता और दिल में एक नई जिंदगी, नई रोशनी महसूस करता। कुछ दिन बाद उसने एक मजदूर रख लिया, उसे शाम को दिहाड़ी देता। फिर वक्त के साथ उसने मजीद मजदूर रखे, काम बढ़ता गया। मेहनत के साथ उसकी पहचान भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसका लकड़ियों का कारोबार शहर भर में मशहूर हो गया। बरसों बाद एक दिन हजरत मौलाना रूमी का उसी के लकड़ियों के टाल के पास से गुजर हुआ तो वही शख्स दौड़ कर आया, हजरत के कदमों में गिर गया। आंखों से आंसू जारी थे, लरजती जबान से कहा, हजरत, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आप ना होते तो मैं मर चुका होता। आपने मुझे नई जिंदगी दी। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, हर आराम से पहले एक तूफान होता है, हर आसानी से पहले एक आजमाइश। जो रस्सी तूने दरख्त से उतारी थी वही आज तेरे वकार की जंजीर बन गई। रब अपने बंदों को झाया नहीं करता, बस वो देखता है कौन अपने हाथ से तकिया बनाता है और कौन रस्सी डाल देता है। आज कितने ही लोग हैं जो रोजी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कोई बेरोजगार है, कोई मेहनत के बावजूद खाली हाथ है, कोई दिन भर मजदूरी के बाद भी बच्चों को 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं कर पाता। दिल ओ दिमाग उलझ कर रह गए हैं। इंसान बेचैन है, आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं, जबान पर शिकवे और हाथ में हसरत है। मगर अफसोस, ये सब कुछ होने के बावजूद वो अपने रब के फरमान पर गौर नहीं करता। हालांकि अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे रिज़्क़ का जिम्मेदार हूँ, तू सिर्फ हलाल तरीके से कोशिश कर, मैं तुझे वहां से दूंगा जहां तू गुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन इंसान इंतजार से थक जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है और बाज औकात तो अपनी किस्मत से नफरत करने लगता है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को देता है। सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। मगर इंसान भरोसे की बजाय बेयकीनी, शुक्र के बजाय शिकायत और सजदे के बजाय शोर को अपना सहारा बना लेता है। आज घरों के अंदर वो गुनाह आम हो चुके हैं जिनकी वजह से अल्लाह रोजी के दरवाजे बंद कर देता है। हालांकि वो गुनाह लोग शौक से करते हैं और उन्हें गुनाह समझते ही नहीं। मर्द जब अपनी बीवी पर बिला वजह गुस्सा निकालता है, उसकी दिल आजारी करता है, उसकी मेहनत, जज्बात या खिदमत को मामूली समझता है, तो वो अपने ही हाथों से कमाई में बरकत को जला देता है। जब शौहर अपने घर में माँ, बीवी या बच्चों पर आवाज बुलंद करता है, सख्ती से बात करता है या नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह उसकी जबान से निकली हर तल्ख बात के बदले उसकी जिंदगी से सुकून छीन लेता है। दूसरी तरफ जब बीवी दिन का आगाज अल्लाह के नाम के बजाय मोबाइल फोन, नूसिखी या सुस्ती से करती है
और दिन भर सोशल मीडिया, फजुल गपशप या दूसरों की टोह में गुजार देती है, तो वो अपने ही हाथों से घर की खैर और बरकत को जवाल दे रही होती है। जब शौहर बीवी के सामने दूसरी औरतों की तारीफ करता है और बीवी शौहर के ऐब दूसरों के सामने बयान करती है, तो रिश्ते की इज्जत खत्म हो जाती है, और जिस घर में इज्जत न रहे वहाँ रहमत कैसे उतरे। जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को सिर्फ जिस्मानी जरूरत समझते हैं, मगर एक दूसरे की रूहानी, ज़हनी या जज्बाती कद्र नहीं करते, तो वो घर सिर्फ चार दीवारी रह जाता है, वो जन्नत का टुकड़ा नहीं बनता। जब औरत शौहर की इजाजत के बगैर अपनी मर्जी से बाहर जाए, या मर्द किसी गैर औरत से दोस्ती रखे, या चोरी छुपे नाजायज बातें करे, तो वो घर अल्लाह के कहर के करीब आ जाता है। जब बीवी बेपर्दगी करे, मेहमानों या सोशल मीडिया पर अपने जिस्म, चेहरे या सज धज की नुमाइश करे, तो अल्लाह उसकी खूबसूरती से नेमत छीन लेता है। और जब मर्द बीवी को तनकीद का निशाना बनाता है और उसके जज्बे को कुचलता है, तो अल्लाह उसकी दुआओं से असर उठा लेता है। ऐसे तमाम आमाल जिन्हें आज फैशन, तरक्की या आजादी का नाम दिया जाता है, दरअसल वो गुनाह हैं जो इंसान को रूहानी तौर पर खोखला और माली तौर पर मुफलिस कर देते हैं। जब घर में झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है, जब बीवी शौहर से छुपकर अपने मैके वालों की मदद करती है और शौहर अपने वालिदैन के खिलाफ साजिश करता है, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुमने मेरे अहकाम को तोड़ा, अब मैं तुम्हारी आसानियों को रोक दूंगा। याद रखो, जहाँ शौहर बीवी को धोखा देता है या बीवी शौहर को बेवकूफ बनाती है, वहाँ दुआ कबूल नहीं होती, और जहाँ दुआ रुक जाए वहाँ रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं, आसमान से रहमत की बारिश नाजिल हो, आपके घरों से बेसुकूनी, बीमारी, कर्ज, तंगदस्ती और दिलों की सख्ती दूर हो जाए, तो सुनो, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं बदलता जब तक अमल न हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, मेरे बंदे, तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊंगा। तो अगर तुम वाकई खुश रहना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमेशा राहत हो, दिलों में सुकून हो, औलाद नेक हो, शौहर का दिल नरम हो, बीवी का रवैया खुशगवार हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में 5 अमल लाजमी शामिल करने होंगे। नंबर 1, सुबह सवेरे उठकर नमाज फज्र अदा करें। वो घरों में सबसे पहले खैराती है जिनके मकीन सहर के वक़्त अल्लाह के सामने सजदे में होते हैं। नमाज के फौरन बाद परिंदों को दाना डालें, पानी पिलाएं, क्योंकि जो शख्स मखलूक एक खुदा का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके हक में आसमान के फरिश्तों को दुआ के लिए मुकर्रर कर देता है। नंबर 2, घर में सूरह वाक़या रोजाना मगरिब के बाद पढ़ी जाए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो सूरह वाक़या को हर रात पढ़ेगा उसे कभी फाका नसीब न होगा। ये अमल न सिर्फ रिज़्क में इजाफा करेगा, बल्कि घर से मुहताजी की लानत को मिटा देगा। नंबर 3, औरतें दिन का आगाज कुरान से करें और जुबान को फजूल बातों से बचाएं, क्योंकि औरत की जुबान अगर फहाशी से बची रहे तो घर में बरकत आती है, और जब वो दूसरों के घरों की टो में न रहे तो उसके अपने घर में सुकून उतरता है। नंबर 4, शौहर बीवी के हुकूक अदा करे और बीवी शौहर की इज्जत को समझे, क्योंकि जहाँ शौहर के दिल से दुआएं निकलती हैं, वहाँ दरवाजे बंद नहीं रहते, और जहाँ बीवी के सब्र के मोती झुकते हैं, वहाँ अल्लाह अपने खजानों के दर खोल देता है। नंबर 5, रात को सोने से पहले अल्लाह से माफी मांगकर सोएं, क्योंकि दिन भर के गुनाहों के साथ सोना वही करता है जिसे अपनी किस्मत बदलने की फिक्र नहीं। रात का आखिरी कलाम अगर तौबा हो तो दिन का पहला इनाम सुकून होता है। याद रखो, इन 5 अमाल में तुम्हारी जिंदगी की खुशियां छुपी हैं, तुम्हारे रिज़्क की कुंजियां हैं और तुम्हारे मुकद्दर के दरवाजे हैं। अगर तुमने ये 5 चराग जलाए तो तुम्हारे अंधेरे छट जाएंगे, तुम्हारे दर बंद नहीं रहेंगे, और तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचकर अर्श को हिला देंगी। तो आओ, आज ही से आगाज करो और देखो अल्लाह किस तरह तुम्हारे लिए ऐसी राहें खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी हिकायत सुनाती हूँ, जो सुनने में तो छोटी है, मगर इसके अंदर वो सबक छुपा हुआ है जो किताबें नहीं सिखा सकती, जो सिर्फ हालात के थपेड़ों से सीखा जा सकता है।
एक औरत थी, गरीब, बेसहारा, एक छोटे से कच्चे घर में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर दिन रात मजदूरी करता, पसीने से शराबोर होकर थकन के साथ वापस आता, मगर जेब हमेशा खाली होती। वो औरत हर रोज शौहर पर गुस्सा निकालती, तानों से इस्तकबाल करती, आवाज ऊंची करती, ससुराल की बुराई, मीके की बड़ाई और आस पड़ोस की औरतों की चमक धमक का रोना रोती। शौहर खामोश रहता, बर्दाश्त करता, पर एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। वो रात को खामोशी से घर से निकला, करीबी नहर के किनारे जा बैठा और सोचने लगा कि अगर मैं मर जाऊं तो शायद मेरी बीवी को रहम आ जाए, शायद मेरे बच्चों को कोई सहारा मिल जाए। वो आंखें बंद करके कूदने ही वाला था कि एक बाबा जी वहां से गुजरे, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिंदगी से हार न मान। जो औरत तुझे ताने देती है वो तेरी गुर्बत नहीं, तेरे ज़र्फ की आजमाइश है। अगर तू मरा तो वो औरत सिर्फ बेवा न होगी, बद्दुआओं का मुजस्समा बन जाएगी। वो शख्स सिसक उठा, वापस घर गया, मगर उस दिन के बाद उसने बीवी को कुछ न कहा। बस काम करता रहा, दुआएं मांगता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। सालों बाद वही शख्स एक छोटी सी दुकान का मालिक बन गया और फिर अल्लाह ने उसके हाथ में बरकत रख दी। लेकिन अफसोस, वो औरत तब तक अपने शौहर की कुर्बानी न पहचान सकी जब तक वक़्त ने उसे खामोशी से झंझोड़ न दिया। मेरी प्यारी बहनों, इस हिकायत में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि शौहर की तंगदस्ती उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। जो औरत उस वक़्त में सब्र का दामन थामती है, वही वक़्त आने पर राहत की मलिका बनती है। वो औरत जो शौहर की थोड़ी आमदनी पर कनात करती है, उसके चेहरे पर अल्लाह ऐसा नूर रख देता है जो महंगे मेकअप से भी हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला का फरमान है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी माल के नुकसान से, कभी फाकों से, कभी खौफ से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह की रहमत उस औरत पर नाजिल होती है जो थोड़ी पर शुक्र अदा करती है, जो खामोशी से बच्चों को अपनी झूठी हंसी से बहलाती है, जो शौहर के खाली हाथ देखकर उसकी आंखों में मोहब्बत रखती है, न कि ताने। मिसाल के तौर पर, एक औरत जब सादगी से जिंदगी गुजारती है तो वो शौहर के दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि शौहर अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। वो बीवी जो अपने शौहर की हिम्मत बनती है, वही औरत उसकी तकदीर बदलने का वसीला बन जाती है। लेकिन जब बीवी हर वक्त तंग दस्ती का ताना दे, दूसरी औरतों से मवाजना करे, फजूल खर्च हो या शौहर को जलील करे, तो शौहर की खुद ही मरने लगती है और आखिरकार वो मर्द अंदर से टूट जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत अगर 5 वक़्त की नमाज अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, तो वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। गौर करो बहनों, अल्लाह ने बीवी के किरदार को किस कदर बुलंद मुकाम दिया है। लेकिन आज अफसोस का मुकाम है कि कुछ औरतें शौहर को वो मुकाम नहीं देती जो कुरान व हदीस ने दिया है। वो शौहर की थकन को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाती हैं, उसकी कमाई को काफी न समझकर उससे कर्ज पर कर्ज दिलवाती हैं। वो अपने शौहर को ऐसे ताने देती हैं जैसे वो दुश्मन हो। ऐसी औरतें ये नहीं जानती कि उनका हर तंज, हर गुस्सा, हर चुभता हुआ जुमला शौहर के दिल से दुआ के बजाय आह निकलवाता है। और याद रखो, शौहर की जबान से निकली आह कभी खाली नहीं जाती, वो सीधी अल्लाह के अर्श पर जाती है। मेरी बहनों, आज अगर तुम्हारे घरों में तंगी है, दौलत की कमी है या सुकून नापैद है, तो पहले अपने अमाल को देखो। क्या तुम फजर की नमाज के वक़्त सोती हो? क्या तुमने कभी शौहर का शुक्रिया अदा किया? क्या तुमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने तुम्हें शौहर का साया दिया? अगर नहीं किया तो समझ लो कि गुर्बत सिर्फ अल्लाह की तरफ से नहीं, हमारे आमाल की सजा भी होती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपके दिल को लगा हो, अगर इन बातों में आपने अपने घर की झलक देखी हो, और अगर आपने इस बात को महसूस किया हो कि शौहर का दिल तोड़ना, उसके हाल पर तंज करना या उसकी मेहनत को रद्द करना दरअसल अपनी ही रोजी बंद करने के मुतरादिफा है, तो आज ही से अपनी जबान को बदला, अपने लहजे को नरम कर लो, अपने रवैये को बेहतर कर लो, क्योंकि एक औरत ही वो दरवाजा है जिससे रहमत भी आती है और लानत भी। अगर तुम सुकून चाहती हो तो शुक्र अदा करो, अगर तुम इज्जत चाहती हो तो शौहर की इज्जत करो,
اور اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں رزق دے تو اس کے بندے کی تذلیل مت کرو۔